टॉप 3 स्टॉक्स इन मेटल सेक्टर। ट्रेडर्स, इतनी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास कि मेटल सेक्टर के अंदर जो टॉप कंपनीज हैं उनका आउटलुक बताइए, ये बताइए कि आगे कैसा परफॉर्म कर सकती हैं, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन, एंड मेटल सेक्टर के अंदर टॉप कंपनीज कौन सी हैं, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक्स, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, सब कुछ फॉलो करो, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना। चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले whenever we talk about, कभी भी हमें अगर ऐसे कोई कंपनीज को देखना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, अगर आईटी की कंपनीज देख रहे हो तो पहली लर्निंग लेके जाओ, आईटी निफ्टी आईटी के चार्ट को देखो पहले। इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बैंक और इन एनी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, फर्स्ट लुक एट बैंक निफ्टी, ताकि आपको पता चले ओवरऑल सेक्टर कैसे चल रहा है। अगर हमें मेटल सेक्टर में जाना है तो हमें देखना है मेटल सेक्टर कैसा कर रहा है। शुड आई लुक एट 15 मिनट 5 मिनट चार्ट, शुड आई लुक एट 1 आवर चार्ट? सबसे पहले हम चलेंगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या कर रहा है। इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे है, फॉलो जरूर करना। नाउ डेली चार्ट पे मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक पीक बनाया था यहाँ पे, राइट, विच वॉज अ टॉप। यहाँ पे एक टॉप लगाया, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट था इस ब्रेकआउट को फेलियर दिया। एज ऑफ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आई सी इज व्हाट, दैट यहां पर हमारी मूविंग एवरेज इज sideways. A sideways moving average, another learning, indicates that the market is range bound. Range bound between what levels? I'll now remove all these drawings. Range bound between these zones, just a second, ये वाला level of roughly 50 to 86 and this level of roughly 5918. As of now, I'd say metal sector is range bound between these levels. Now let us look at, so ideally this should not be one of the best times क्योंकि metal sector में आ रही थी queries. That is why we made a video on it. But whenever you ask a research analyst, what should I do? Should I wait? Should I invest? Or should I buy? Should I sell? Should I hold? Right now, just by looking at Nifty IT, right, what it means is, I mean, right now it is sideways. So it is best avoided as of now. But let us look at internal stocks. वहां पर देखते हैं किसी में शायद अच्छा ट्रेंड हो। JSW स्टील पे जब हम देख रहे हैं तो अगेन similar trend. Just have a look. If I make a simple base zone over here, what you would see is, just a second, if I make a simple base zone, you would see market is exactly sitting at a support area, right? Market is sitting at a support area under this level. If we give a breakdown of this level, then we are what? We are bearish. अगर इस जोन का breakdown हो गया, then we are bearish till what level? We are bearish till roughly this level of 600 in JSW Steel on a positional basis. So यहाँ पे ये first level इस जगह आ सकता है आपके पास, second level यहाँ आ सकता है, right? So if we give a breakdown of 657, 632.5 could be a possible downside target, as long as we sustain above it. Towards the upside, what I see is we can see levels of 693, right? If we manage to sustain above this and above the moving average, क्योंकि upside में the first target should always be what? It should always be the 20-day exponential moving average. This is JSW Steel. Now, second would be what? Second would be Tata Steel. Now Tata Steel के daily chart पे when we have a look, again a very similar formation in all these companies. Why? Because metal sector है. Tata Steel के अंदर देखो अब it is forming a tentative breakdown. अगर इसके नीचे निकलते हैं, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, but whenever we give a breakdown, right now I will not say that this is a breakdown. Why? Because previously हम ऐसे आए थे, बट बिकॉज मूविंग एवरेज दूर था, हम वापस मूविंग एवरेज पे पुल बैक लगा बैठे, हम फिर ऐसे आ रहे हैं, बट अभी मूविंग एवरेज दूर है. वेन एवर देर इज अ ब्रेक डाउन दैट वर्क्स और अ ब्रेकआउट दैट वर्क्स, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, क्यों वर्क हुआ? क्योंकि मूविंग एवरेज कैसे नीचे से सपोर्ट कर रहा है. ओवर हेयर यू गॉट अ ब्रेकआउट रफली, राइट, इन दिस एरिया. जस्ट अ सेकेंड, ये एरिया में आपको एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ एक फॉल्स ब्रेकआउट था. क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज दूर था. यहाँ पे मूविंग एवरेज पास आया तो ब्रेकआउट ने परफॉर्म किया. सिमिलरली अभी ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ ब्रेकडाउन, इट्स नॉट एज ऑफ नाउ. मूविंग एवरेज अभी दूर है. सो टुवर्ड्स द अपसाइड हमारे पास फर्स्ट लेवल इस मूविंग एवरेज का आ जाएगा, सेकेंड लेवल आ जाएगा हमारे पास
1363 zone का, right? This is Tata Steel as per the daily analysis. Now we have got the third and final company, which is what? Which is Hindalco. Again, that is why I always say, look at the index chart. अब यहां पे जब आप आ रहे हो, आप देखोगे अगेन अ वेरी वेरी सिमिलर फॉर्मेशन. ये देखो, एक बहुत सिमिलर फॉर्मेशन दिख रही है मार्केट में इस जगह भी, राइट? रफली यू कैन से अगेन यहां पर अपसाइड में सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक. फर्स्ट टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज, सेकेंड टारगेट वुड बी अराउंड दिस एरिया. फर्स्ट वाला थोड़ा और नीचे आएगा, राइट? अगर हम इससे नीचे निकले, इफ वी मैनेज टू स्लाइड डाउन, then this level would be of roughly 423, and इसके नीचे this would be the final level 403.6. Now traders, I hope this video was helpful. The purpose of this video is to provide knowledge and education. These should not be taken as investment tips, क्योंकि the idea is you should focus towards being a self-reliant trader. Make sure to follow the stock market live and to iWealth Academy. The link is in description. वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.